सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगनत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। गुरु दरबार दे निजम अनुसार हुण समा है गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिस दे अंदर 2 श्लोक ने एक पौड़ी है आप जी ने सरवण किया है। इस दे विचों दो श्लोकां दी विचार आप जी ने कल सरवण की सी। ये वार है चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दी और इस दे नाल जो श्लोक ने वो दूसरे गुरु साहबाना दे भी हैं। जिवें ये 2 श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी दे ने। सतगुरु जी ने सानू जो उपदेश दिता है वो असल विच पौड़ी विच है। क्योंकि जदों भी कोई विद्वान तुहानू दसेगा जां तुसी किसी कोलों ये पुछोगे भी ये जिहड़ी बिलावल राग दी ये वार है ये किहड़े गुरु दी है तां उस वेले एक मत यही शब्द बोले जाणगे कि ये जिहड़ी वार है ये चौथे पातशाह जी दी है। ये गुरु रामदास महाराज दी है। इस बाणी का जो सरलेख है अगर आप जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विचों पढ़ोगे तो वो है बिलावल की वार महला चौथा। ये वार
ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰੀ, ਸੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿਨਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਥਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਰਥ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਪਾਠ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਗੋਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੂਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਇਸੇ ਧਨ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ।
इस धन ने माँ प्यो के मर्डर कराए ने, इस धन ने भरा भरा मरवाए ने, भरावां दे कतल करा दिते ने, इस धन ने पुत्रां दे कतल करा दिते ने, इस धन ने पति पत्नी दे कतल करवा दिते ने। पहला जीवन साथी की इंश्योरेंस करा दी, मुड़ के वह मर्डर कर दिता भी पैसे मैनू मिल जाएंगे। पर फिरदे असीं उसे धन मगर ही हाँ जिस धन के प्रति सानू पता है कि काचा धन संचय मूर्ख गवार, मनमुख भूलै अंध गवार, विख्या कै धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। और इत्थे प्रचार भी उही किया जाता है। तुसी कोई टीवी ला के वेख लो, तुसी सानू अकसाउण वास्ते, सानू अपने नाल खिंचण जोड़न वास्ते सानू बार बार इदां दे फार्मूले जिहड़े ने वो धर्म दे लोग बना बना के सुना रहे ने। पढ़ी जाने आ कि धन जोबन दोए वैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए, दूतां नू फरमाया लै चले पत गवाए। ये दो चीज़ां धन ते जोबन जिन्हां ने भी रखे ने, रंग ते बड़े लगे ने, लोगों ने उन्हां दियां फोटो खिंचियां, लोगों ने उन्हां दी सुंदरता दे गीत गाए, लोगों ने उन्हां दियां धन दौलत दियां वारां बना बना के गाइयां। पर अखीर की होया? वो बेपत होके संसार तो गए। अज तक पढ़ लो, दुनिया की हिस्टरी है कि जर जोरू ते जमीन सारे युद्ध इस करके होए ने। सब जंगां दा मूल कारण यो ही है। लोग इन्हां चीज़ों के पिछे एक राजा दूजे ते हमला कर रहे हैं। तो सतगुरु पिता महाराज समझाते ने भी धर्म के घर आने वाले हो, तुहानू समझ आनी चाहिए है कि वड्डा धन नाम है, दुनियावी धन वड्डा नहीं है। हाँ, यदि सतगुरु जी के घर विच मनाही भी नहीं, इनू सतगुरु के घर विच दुरकारिया फटकारिया नहीं जाता। जदों दौले शाह फकीर ने पूछया सी कि हे गुरु हरगोबिंद साहब, तुहाडे घर विच धन की है, तो सतगुरु कहन लगे भी ये गुजरान है भाई। अज बड़े लोग ने जिहड़े तुहाडे अगे भी ड्रामा करनगे, नहीं जी नहीं, पैसे की तो कोई गल ही नहीं हैगी जी। मैं खुद गवाह इस गल का कि जिहड़े आदमी कहंदे सी कि असी निष्काम आ, कथा कीती, कीर्तन किया, माया चुकी गोलक विच पा दी, 2 घंटिया बाद पता लगा जी वो प्रेमियों के घर बैठे ने ते झगड़ा हो रहा है। काहदा? 5-7 बंदे नाल ने ते वो जाके उत्थे कह रहे ने भी सेवा दिओ जी। स्टेज ते कह के गए ने भी नहीं नहीं बाबा जी नूं पैसे नहीं चाहिए, गोलक च पा दिओ जी। हुण झगड़ा इस गल का भी घर वाले कहते हैं जी 5000 लै लो, कहते ना ना एडे वड्डे बाबे ने 21,000 तो घट किवें लै लैणगे तुहाडे कोलों। क्योंकि सच ये है, पैसे तो बिना कोई काम चलता ही नहीं है। पैसे तो बिना कपड़े नहीं आउंदे, पैसे तो बिना ते राशन नहीं आउंदा। क्यों ना होवे असीं मन लईए कि धन गुजरान है, जिहड़ी गल गुरु हरगोबिंद साहब ने कही है वो साडे सिर मत्थे ते है। क्यों नुकताचीनी करते आप? क्यों ड्रामेबाजी करते आप? छड्ड दईए ड्रामेबाजी भी, बई पैसे बिना काम नहीं चलते। पैसा तो जरूर चाहिए। फिर साडे गुरु साहबान जिन्हां दे तीरां नूं भी सोना लग्या सी, जिन्हां दीयां कलगियां विच भी हीरे मोती जड़े हुए सन, इस घर विच पैसा दुरकारिया फटकारिया नहीं जाता। इत्थे गुजरान के तौर पर उसनूं प्रवान किया जाता है। पर एक गल समझाई जाती है कि नाम है की वड्याई, वड्याई नाम दी है, धन की वड्याई नहीं है।
जिदन ये गल समझ आई फिर असी की करांगे। इत्थे इस स्थान ते जिहड़ी शाम नूं कथा चलदी है ना, अजकल वो कथा है हक परवर हक केश, गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश, गुरु करता हर राय। दारा शको जिहड़ा है, जदों पिता बीमार हो गया, शाहजहान राजा बुढ़ा हो गया, भरावां विच खाना जंगी हो गई। हुण दारा शकोर ने छोटे हुंदियां बचपन तो साईं मियाँ मीर जी की संगत की सी। इहदे उत्ते प्रभाव धर्म का बहुता सी, राजगिरी का घट सी। औरंगजेब जिहड़ा सी वो बड़ा क्रूड़ चवगता मूर्ख कपटी बादशाह सी। उन्हें की कीता, पहला एक भरा नूं कहा कि तू मेरे नाल लग, मुराद बख्श लू, मैनू तो दुनिया का कोई शौक है नहीं, राज भाग का कोई लालच नहीं, आ मैं तेनों दिल्ली के तखत ते बिठावां ते तेनों पता ही है भी मैं तो अल्लाह की इबादत करने विच मशरूफ रहना, तो मैं तो मक्के चले जाना है, उत्थे काबे शरीफ विच बह के मैं तो अल्लाह अल्लाह करांगा, तो तू दिल्ली का राज तखत संभाली। ओदी गल्लां विच आ गया, आगरे तक उहदे नाल आया। जदों उसने आगरे आके दारा शको नूं जित लिया, भजा दिता, ते औरंगजेब ने की कीता, अपने पिता शाहजहान नूं भी ते अपने उसे भरा नूं जिन्हों तखत ते बिठाउणा सी मुराद बख्श, उन्हां दोवां नूं पकड़ के कैद खाने विच सुट दिता। दारा शको दिल्ली तो दौड़िया ते गुरु हराए साहब कोल पहुंचदा है। सतगुरु कहन लगे, दस भाई तेनों की चाहिए? कहन लगा जी मेरा जन्म मरण मटा दिओ। सतगुरु कहते जे तू कवें तेनों दिल्ली का तखत दवा दईए। कहन लगा महाराज 4 दिनों की इस रंगली जिंदगी मैनू नहीं चाहिए, मैनू आत्मक सुख चाहिए, पर लोक विच मेरी मदद करो ताकि मेरी आत्मा आनंद विच जाके टिक जाए। ये कथा बड़ी सुनने वाली है, शाम नूं रोज होंदी, अज भी होएगी। एक दुनियावी बादशाह नूं गल समझ आई ते ओहदे मगर 50,000 के करीब औरंगजेब की फौज लगी हुई है कि जिउंदा मरिया पकड़ के मेरे सामने लियाओ। पर वह गुरु हराए साहब महाराज नूं कहंदा, महाराज मैनू दुनियावी राज नहीं चाहिए, मैनू तो आत्मक ज्ञान दिओ। और गुरु जी ने दिता उसनूं। अगर ये गल सानू समझ आ जाए कि सानू एक गल का पता है, जेड़ा इंसान बाणी पढ़ेगा, जेड़ा इंसान संगत करेगा, जेड़ा व्यक्ति सेवा करेगा, जेड़ा व्यक्ति रब की भगती करेगा, तुहानू पता उसनू पहली चीज की मिलेगी? बिना मंगण तो वो मिलेगी रिद्धि। सारी दुनिया उन्हें अच्छा कहेगी। फिर उसनू मिलेगी निधि, कुल दुनिया की धन दौलत खजाना उहदे घर आएगा। फिर उसनू मिलेगी सिद्धि, वो जो क्या करेगा पूरा हो जाया करेगा। फिर उसनू मिलेगी तुरिया अवस्था। जे दे विच कोई झूठ है तो भाई मैनू भी समझा दिओ। जिन्हां साधुआं महात्मावां कोलों जाके असीं दुनियावी धन मंगदे हां, ये धारणा उही पढ़ाउंदे ने कि सेवा नूं लगदा मेवा करके कोई वेख लो। पढ़ी असीं भी जाने कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे, चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। मैं एक बेनती करा, ये गल मैं पहला भी बहुत बारी सांझी की भी, एक राजे के दरबार विच
एक ज्योतिषी आया, वो आके की कहता है, वो कहता भी राजा तेरी वड्डी रानी मर जाएगी, छोटी भी मर जाएगी, तेरा वड्डा मुंडा भी मर जाएगा, तेरा दूजा मुंडा भी मर जाएगा, तीजा भी मर जाएगा। उन्हें बड़े ही गिण दिते, कहता फिर तू मरेगा। राजा कहता भी एडी काली जुबान वाला बंदा, कहता फड़ो इनू, सुटो इनू कैद खाने में, सुट दिता। दूजे तीजे दिन एक होर ज्योतिषी आ गया, कहता राजन तुहाडी उम्र बड़ी लंबी है, कमाल दी उम्र है तुहाडी, तुहाडी उम्र तुहाडे पुत्रां नालों भी, तुहाडी उम्र तुहाडीआं राणियां नालों भी बड़ी लंबी है। राजा कहन लगा इनू इनाम दिओ बई, ये बड़ी चंगी खबर लैके आया। वो जिहड़ा जेल च सी वो रौला पाउंदा, कहंदा इहो गल ते मैं आखी है, कई उन्हें भी उही है, कई उन्हें भी यही है। उन्हें आख्या राजा तेरी उम्र वड्डी है, पर कहने का तरीका वेखो की है, कहंदा तेरी वड्डी रानी मर जाएगी, कहंदा मर छोटी भी जाएगी, तेरा वड्डा पुत्र मर जाएगा, दूजा भी मर जाएगा, तीजा भी मर जाएगा, चौथा भी मर जाएगा, फिर तू मरेगा। असल गल उही असी गुरुद्वारे आके कहने, उही सतगुरु कहंदे ने। कल किड्डी सोहनी गल भाई साहब ने कही सी, इक्को जेल है, उस जेल विच कैदी भी रहिंदा है ते जेल सुपरिटेंडेंट भी रहिंदा है। हुण कैदी जदों जेल नूं जांदा है, होर तरीका जिहड़ा जेल सुपरिटेंडेंट जेल नूं जांदा है, वो सवेरे फुल बूटे ला के फीतियां फूतियां ला के जांदा है। असी चाहुंदे हां सानू सुख मिले, साडा सतगुरु भी कहंदा है कि सिखा तू मेरे कोल आ, मैं चाहुंदा तू सुखी होवे। मेरा गुरु नानक ये वेख ही नहीं सकता कि कोई दुनिया विच दुखी होवे। वो तो रोज कहंदे ने जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा, धार जित द्वारै उभरै तिते लेहो उभार। सतगुरु अज भी समझाते ने कि हर धन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों दिवाया। भाई जिहड़ा परमात्मा दा नाम धन है, ये रतन हीरे ने। जवेहरी तो भाव है ये जवाहरात ने, ये हीरे ने, पर ये नाम धन है जिसनों परमात्मा दे पासों दवाया है। ते दवाउण वाला कौन है? दवाउण वाला गुरु है। ये चीज सानू किवें मिले? अज असीं सुणदे हां ना भी गौरमेंट दीयां स्कीमां ने जी, फिर असीं पुछदे भी सानू किवें मिल सकदियां ने। फिर पता लगता है जी अमकी मिनिस्ट्री है जी, अमका दफ्तर है जी, अमका उत्थे ऑफिसर है जी, उहदे राहीं ये चीज़ जिहड़ी है ये तुहानू प्राप्त हो सकती है। असल विच नाम दा दाता सतगुरु है। खजाना किहदा है? खजाना ते वाहिगुरू दा है। वंडदा कौन है? वंडदा गुरु है। तुसीं किते दुनिया में चले जाओ, तुहानू धागे मिलणगे, तवीत मिलणगे, लाचियां मिलणगियां, लौंग मिलणगे, केले मिलणगे, सेब मिलणगे, स्वाह दीयां पुड़ियां मिलणगियां। एक गुरु नानक है जिहदे घर आओगे तुहानू जपजी साहब मिलेगा, जिथे तुहानू मूल मंत्र मिलेगा, जिथे तुहानू गुर मंत्र मिलेगा। और ये गल समझाई जाती है कि इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है, काम तेना सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पावे मेरे मना। इस करके जप मन सतनाम सदा सतनाम। उठद्या बहद्या वाहिगुरू वाहिगुरू करो, सारा कुछ ही मिलेगा तुहानू। पर सवाल भी करे कौन? अगली गल मैं करांगा, तुसी भी कहो जी मैं करांगा, पर जदों करन जाओगे ना फिर तुहाडे अगे एक होर रुकावट आएगी कि जिद्दां दा साडी जिंदगी जीउण दा ढंग तरीका है, ये कहना ही बड़ा औखा है।
क्योंकि असीं चुटकलेबाजी भी करनी हुंदी है, निंदिया चुगली भी करनी हुंदी, वैर विरोध भी करना हुंदा है। हुण उत्थे वाहिगुरू कित्थों निकलेगा जी? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। फिर वो दोस्त बनाने पैणगे जिहड़े गुरुद्वारे जाते होण, वो दोस्त बनाने पैणगे जिहड़े दरबार साहब जाते होण। ते जे तुसीं दोस्त वो बनाओ जिहड़े कहण भी आपां गोवा चलीए, जिहड़े तुहानूं कहण आपां नेपाल चलीए, जिहड़े तुहानूं कहण आपां अमकी थां ते जुआ खेडदे ने उत्थे चलीए, फिर ते वाहिगुरू नहीं आएगा। नाम धन परमात्मा कोल है, पर दवाउंदा कौन है? सो गुर हर धन हर पासों दवाया, गुरु ने दवाया। किहदे कोलों? रब कोलों। जे किसे किहे दिस आवे तां कोई किहे मंग लए। सतगुरु कहंदे जे किसे कोल होर कोल होवे ते तुसीं मंग लो भाई। देखो मेरे कोल साइकिल है, तुहानूं दिसदा है, तुसीं मंग लो। मैं पैदल तुरिया जावां, कोई आके मैनू कहे ज्ञानी जी साइकिल दोगे मिनट क, भी पुछो तेनू मेरे को साइकिल दीदा है? मैं तो आप 11 नंबर गड्डी ते चढ़िया होया। किसे कोल स्कूटर होवे, मैं कहां वीर जी एक मिनट मैनू स्कूटर दोगे, गल समझ आउंदी है। वो आप पैदल तुरिया जांदा, मैं उहनूं कहना जी स्कूटर दे दो, कहेगा मेरे कोल कित्थे है। गुरु रामदास महाराज कहते हैं जे किसे किहे दिस आवे तां कोई किहे मंग लए। जे किसे कोल ये नाम धन होवे ते भाई उहदे कोलों कोई मंग लवे। अक्के, अक्के दा अर्थ है जां। कोई किहे देवाए, ये हर धन, हाँ ये हो सकता है कोई तुहानूं किसे कोलों लै दवे। जिवें कोई मेरे कोल आवे कहे मैनूं साइकिल चाहिदा है, तो मैं कहां भी मेरे कोल तो है नहीं, पर मेरे वड्डे भरा कोल हैगा, मैं पुछ देना तैनूं। ये हो सकता है, ये गल है, पॉसीबल है, ये संभव है। कोई मेरे कोल पैसे मंगण आवे, मैं कहां जी मेरे कोल तो है नहीं, पर चलो मैं अपने आड़तीए नूं कह देना, अपने बैंक मैनेजर नूं कह देना, जे हो सकता है कोई ढंग तरीका कढ के तैनूं पैसे मिल जाण ते। ये तो हो सकता है, पर जिहदे अपने कोल नहीं, वो सीधा नहीं दे सकता, क्योंकि उहदे कोल है ही नहीं। वो दवा सकता है। सतगुरु कहंदे ने ये हर धन जोर कीता किसे नाल ना जाए वंडाया। पर ये चेता रखना, ये नाम धन ताकत नाल वंडिया नहीं जा सकता। दुनियावी धन तुसीं किसी कोलों खो सकते हो, लुट सकते हो। कोई झूठा पेपर वर्क करके तुसीं अपने नां करा सकते हो, पर जिन्हें वाहिगुरू जपिया है उहदे नाल हेरा फेरी नहीं हो सकती। जिन्हें मूल मंत्र सिमरिया है उहदे नाल हेरा फेरी नहीं हो सकती। जिन्हें जपजी पढ़िया है उहदे जपजी नाल धोखा नहीं हो सकता। गुरु रामदास महाराज कहते तुहानूं आप जपना पवेगा। इहदा अर्थ यह है तुसीं मेरे कोल आओ, मैं तुहाडे कोल आवां, आपां की कर सकते? आप एक दूजे नूं कह सकते हैं कि वीर आ पाठ मैं भी करदा, तू भी कर लै। पर कोई कहे नहीं तो मैनूं अद्धा पाठ दे दे, नहीं, ये तरीका नहीं हैगा। ये तो हो सकता है कि मेरे को 100 रुपया मैं 50 तुहानूं दे दियां, 50 आप रख लवां, पर यह नहीं हो सकता कि अद्धा जपजी मेरे को रह जाए, अद्धा तुहाडे कोल चला जाए। इदां नहीं होना। मैं पढ़िया तो तुहानूं भी पढ़ना पवेगा, जे मैं सिमरिया तुहानूं भी सिमरना पवेगा, जे मैं गुरुद्वारे जाना तुहानूं भी जाना पवेगा। ये गल्लां मन नूं समझाउण वालियां ने भी दरबार साहब चले, 2 चुभे मेरे भी मार आवीं। किसी होटल रोटी खाण गए भी कहो ना भी 2 रोटियां मेरियां भी खा आवीं। असीं नहीं कहंदे, पता है भी 2 रोटियां दे पैसे देने पै जाने, ढेडे दा भर जाना, मैनूं की मिलना है। सतगुरु सानू रोज समझाते हैं कि आपन हथी अपना
आपे ही कारज सवारी है। ये कारज तैनू अपना आप करना पैना है। जिसनू सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हथ आवे। हुण गुरु नाल शरदा किवें जुड़े? जे रब जोड़े तो आप जी वेखते होवोगे कई बच्चे जन्म तो ही बचपन तो ही धार्मिक होंदे ने, उन्हां दी लगन ही धर्म वाली है। एक बच्चे बचपन तो ही असीं वेखदे हैं कि वो इस पासे तुरदे ही नहीं, उन्हां दी सोच उन्हां दा रस्ता ही कुछ होर तरीके दा हुंदा है। सतगुरु कहंदे ने जिस व्यक्ति दा प्यार सतगुरु दे नाल जुड़दा है ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ हरि नाम ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆਉਂਦੀ है। क्योंकि गुरु जदों भी त्रुठेगा सतगुर सिख और नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है। गुरु नाम का दाता है। इसे करके सतगुरु रोज कहते हैं कि बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। गुरु तो बिना ये नाम धन नहीं मिलना। जदों वाहिगुरु किरपा करदा है, गुरु नाल साडा प्यार बनदा है, ये नाम धन की वंड साडे हथ विच आउंदी है। जिसनों करते धुर लिख पाया। ये किवें बनिया? ये असल च पूर्वले जन्मां दा एक लेख साडे मत्थे ते लिखिया होया सी। सानू गुरु मिलना सी, असी रब दी बख्शिश दे पात्र बनना सी। देखो मेरा तो हमेशा ही तरला है, वो भी लोग ने जिन्हां नू गुरु किहड़े मिले ने, जिहड़े रोज कोट कचहरी तरीका भुगतदे ने, जिहड़े जेलां च बंद ने, जिन्हां दे उपर अत संगीन दोष ने। तो सानू गुरु किहड़ा मिलिया है? सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिहदे बारे दुनिया कहे कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई। देखो किड्डी खुशकिस्मती है, किड्डे वड्डे साडे भाग। ये गल कदे राम तीरथ दंडी सिरयासी दी तो सुनोगे ना, तुहाडा मन होर सिदक नाल भरेगा। उहदियां किताबां आउंदियां ने, सर्वोत्तम ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब, सर्वोत्तम पंथ खालसा पंथ, उन्हें किताबां लिखियां ने। पर यह सारा कुछ उहदी जिंदगी विच वापरदा है तकरीबन 70 साल की उम्र बाद। फिर वह सिख बनता है, दाढ़ी रखता है, केस रखता है। फिर वह दुनिया नूं कहंदा है कि ठीक है मेरी अजे भी भाग चंगे ने कि देर नाल ही सही पर मैनू सही थां प्राप्त हो गई। पर कहंदा मैनू एक गल दा पछतावा है कि मेरी जवानी एवें ही चली गई। सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने ये जिसनों करते धुर लिख पाया, जिहदे धुर दरगाह तो लेखां दे विच, भागां दे विच, कर्मां दे विच परमात्मा लिखे ये दात उसनों मिलती है। इस हर धन का कोई शरीक नहीं। इस धन का शरीक कोई नहीं जे दुनिया विच, कोई शरीक नहीं। बाकी धन दे सब शरीक ने। बाकी धन दे नाल लोकां दी ईर्खा हो सकती है, नाम धन नाल किसी दी कोई ईर्खा नहीं हो सकती। इस करके किसे का खत ना ही, सतगुरु पिता महाराज कहते ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਟਾ नहीं, क्योंकि ਇਹ नहीं कह सकता तो मैं लिखाया होया जी। जिवें एक आदमी आवे असीं कहने जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरे नां ते है। नाम धन दे बारे किसी दी कोई मलकीयत नहीं है। कोई नहीं कह सकता जी मैं सिमर सकदा, तू नहीं सिमर सकदा। मूल मंत्र का पाठ मैं भी कर सकदा, तुसीं भी कर सकते हो। जपजी साहब मैं भी पढ़ सकदा, तुसीं भी पढ़ सकते हो। ये खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को सांझा।
ये सारिਆਂ वास्ते है। सतगुरु बाणी में समझाते ने कि 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, जो हर ध्यावै सो प्रवान। ज्यों चंदन निकट बसै हरिंड बपड़ा, त्यों सत संगत मेल पतत प्रवान। हुण चंदन दे नेड़े जेड़ा भी उग पवेगा वही प्रवान है। जेड़ा भी चंदन दे नेड़े पैदा हो जाएगा। 4 वर्ण ने 4 आश्रम ने, सवाल ते भी उन्हां चों वाहिगुरू कौन कहंदा है? असीं उदां ही सोची जाने भी शूद्र माड़े हुंदे ने ते ब्राह्मण चंगे हुंदे ने। ये तां मनु जी दी कीती हुई वंड है। सतगुरु दे घर विच इस वंड नूं इस तरीके नाल प्रवान नहीं किया गया। सतगुरु तो कहते भी मन लिया ठीक है, तुसी वर्ण बना दिते, आश्रम बना दिते, पर साडे घर विच वो प्रवान है जिहड़ा सत संगत विच आके मिलदा है, जिहड़ा आके बाणी पढ़दा है। जिवें चंदन दे नेड़े कोई पौधा उग जाए प्रवान हो जाता है, संगत विच पतत आवेगा वो भी प्रवान हो जाएगा। इस करके सतगुरु कहते ने किसे कै सीम बन्ने रोल नाही, जेको हर धन की बखीली करे, तिसका मुंह 4 कुंटा विच काला कराया। इहदा वट बन्ने दा भी आंढ गवांढ दा भी कोई आदमी दावा नहीं कर सकता, पर जिहड़ा नाम धन वाले दी निंदिया करदा है ना, सतगुरु कहंदे उहदा मूँह काला हुंदा है। एक तो हुंदा ना भी कोई किसी दा शरीक होवे, शरीक होना तो दूर दी गल, अगर नाम सिमरन वाले दी तुसी निंदिया करोगे उहदा कुछ नहीं बिगड़ना। वो तो कहंदा है निंदो निंदो लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। वो तो कहंदा मेरी निंदिया करो भाई, जिन्नी तुसी करोगे कहंदा उन्ना मैनू उहदा फल वाधा मिलेगा। वो कहंदे निंदक हमरे कपरे धोवै, निंदक हमरा जीवन लोरै। निंदक की करदा है? धोबी कपड़े धोंदा है ना पानी साबण नाल, ते निंदक नाम जपण वाले दे कपड़े अपनी जुबान नाल ते अपने मूँह नाल धोंदा है। हुण वेख लो किसी दी गंदगी जुबान नाल साफ करनी कितनी औखी है, पर निंदक बड़ी रस लै लै के करदा है। निंदक नूं उल्टा रस आउंदा है, वो सारी सारी रात ही निंदिया की गल शुरू करके सारी रात ही कढ़ दिंदा है। और साडा सारियां दा इस सुभाव है, सानू निंदिया विच बड़ा स्वाद आउंदा है। निंदिया की गल करदियां करदियां टुट जाए, मुड़ के फोन ते पुछी दी भाजी वो गल रह गई सी विच, पुछो भी कदे कथा भी सुनी है, मुड़ के फोन करके भी विच रह गई सी जी पूरी कर दिओ। निंदिया सुनदे असीं, पर यह भी चेता रखना निंदिया करन वाले दा मूँह काला हुंदा है। हर के दिते नाल किसे जोर बखीली ना चलई। जिन्हों रब देवे उहदा कौन शरीक हो सकता है, उहदा कौन विरोध कर सकता है, रब दे बख्शे तो कौन खो सकता है। इस करके दिन दे नित नित चढ़े सुआया, वो तो सगों दिन दिन रात रात करके उहदा खजाना जिहड़ा है, उहदी दौलत जिहड़ी है वो भाई वधदी है। अज बड़ा इतिहासक दिन है, 11 मार्च जदों सिख कौम के 5 जरनैलों ने दिल्ली फतेह की सी। जिहड़ा 30 हजारी इलाका है, कोट तो मुड़ के बनी है ना, अजकल असीं कहने रोहनी कोट, रोहनी पहला सी कोट मगरों बनी है। कड़कड़ डूमा कोट, कड़कड़ पहला सी कोट मुड़ के बनी है। कोई कहता जी पटियाला हाउस कोट, पटियाला हाउस इत्थे पहला सी कोट मगरों बनी है। एक कोट जिहड़ी 30 हजारी है तो मुड़ के बनी है, पर इस इलाके का ना 30 हजारी ये पहला बने। कदों? जदों खालसा फौज आई सी, उन्हां दी गिनती 30,000 सी। उन्होंने इत्थों कंध विच पाड़ पा के, ताई अगे मोरी गेट कहते ना उन्होंने, कंध विचों मोरी कढ़ के दिल्ली विच प्रवेश किया सी। दिल्ली बड़ी छोटी जी सी। अखीर अज दे दिन
उन्होंने दिल्ली फतेह की सी। लाल किले के उपर केसरी निशान खालसा राज दे झुलाए सन, पर फिर समा पा के मुगल हाकमां दे नाल एक समझौता होया सी कि बाबा बघेल सिंह जी दिल्ली विच रहणगे और 10,000 फौज उन्हां दे नाल रही सी ते बाकी खालसा फौज जिहड़ी वो चली गई सी, वो वापस चले गए सन। और उसे वक्त उन्हां सालां दे विच ये दिल्ली दे जिहड़े गुरुद्वारे ने इन्हां दी निशानदेही करके इन्हां दी उसारी की गई सी। पहली बारी निशानदेही गुरु कलगीधर पिता ने आप करवाई। जदों सतगुरु जी आके मोती बाग साहब ठहरते ने, उस वेले उन्होंने सीसगंज साहब की, रकाबगंज साहब की, बंगला साहब दियां ये निशानदेहियां करवाइयां, पर उदों इत्थे इमारत नहीं सी बन सकियां। फिर बाबा बघेल सिंह ने इन्हां अस्थानां ते गुरुद्वारियां दे भावें वो जिहड़े इमारत दे स्वरूप सी छोटे सी, पर ये बनाए बकायदा। इत्थे उन्हां दी सेवा संभाल वास्ते सेवक जिहड़े सी, उन्होंने असीं भाई साहब कहीए या सेवादार कहीए, वो नियत कीते और तकरीबन 9-10 महीने बाबा बघेल सिंह जी दिल्ली विच रहे। और पिछले साल पहली बार दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह दिहाड़ा बड़ी शानो शौकत नाल मनाया। और जिन्हां ने टीवी ते वेखिया, जिन्हां ने आप विच शमूलीयत की, वो दिन उन्हां दी यादगार का एक हिस्सा बन गया। और इस साल भी प्रबंधक सेवादारां ने यतन किया है कि 21 तरीक ते 22 तरीक 22 नूं वो नगर कीर्तन होवेगा। उस तरह जलूस का वो जलाओ सजेगा जिवें फौजां कदे लाल किले विच प्रवेश कीतियां सी। वही रस्ता है, उतों ही पिछले साल की तरह ये नगर कीर्तन आरंभ होवेगा, जिसकी संपन्नता लाल किले जाके होवेगी। 21 रात के विशेष कीर्तन समागम होणगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, ये साडा कौमी एक माण का दिन है, ये कोई आम दिन नहीं है साडी जिंदगी विच। ये सानू जरूरत है अपने बच्चों नू, अपनी जनरेशन नू, अगों अपने परिवारां नू ये दस्सण वास्ते कि असीं किड्डी वड्डी विरासत दे मालक आ। एक वो भी वेला सी कि जदों इस लाल किले के उपर केसरी निशान झुलदा सी। और जे इहनूं दूजी तरह कहीए, आ जिहड़ी अज दी हिंदुस्तान की आज़ाद प्रभु सत्ता है, इहदा मुੱਢ किन्ने बद्धा है। अज असीं कहने जी लाल किले के उपर तिरंगा झूलदा है, ये तिरंगा झूलना लाया किन्ने है? ये लाया सी सिख सरदारां ने, ये बाबा बघेल सिंह वर्गिया ने, ये सरदार जस्सा सिंह आलूवालीए वर्गिया ने, ये सरदार जस्सा सिंह रामगढ़ीए वर्गिया ने। नहीं तो इत्थे मुगलों का ही झंडा झूलदा सी। ये तिरंगे का मुੱਢ भी केसरी ने बद्धा है। जे शायद सानू ये गल मान नाल कदे जीवन विच पक्की हो जाए तो इस करके ये मान मत्ता दिन साडी जिंदगी विच अज आया है। सानू इस गल की खुशी होनी चाहिए है। सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल दियां बहुत बहुत अज दे इस दिन दियां जिहड़ा इतिहासक दिहाड़ा है उहदियां वधाइयां। अगों तैयारी करिए आपां कि 21-22 तरीक नूं असीं इहदे विच जिहड़ी गलती पिछली वारी होई कि असीं घर बैठे रह गए, वो ऐतका नहीं करनी। ऐतका असीं उस दिन उत्थे पहुंचना है। असीं वो खालसाई जलाओ, वो सिੱਖੀ का जलाओ सजाउणा है, ताकि दुनिया नूं पता लगे कि सिख अपने कौमी दिनां नूं किन्ना प्यार करते हैं। समा समाप्त है, भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।